Good morning, all. I welcome you all for a lecture series of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita. Today we are going to discuss process to compel appearance of person. This process to compel appearance of person is given in chapter 6 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita under section 63 to 93. So today our discussion is in respect to process to compel appearance of person. Well, for effective working of criminal justice system, we require the presence of accused, witnesses and individual. We all know. So, the presence of accused, witnesses and individual is necessary for the purpose to carry out the investigation, inquiry and trial. It is because of this reason Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita makes the provision for process to compel appearance of person. Here the word compel make it clear. Normally the appearance of accused, witnesses and individual is necessary, and when these are avoiding their presence, then the court makes empower under these provisions to ensure the presence by a compelling to the accused, witness and individual, so that the investigation, inquiry and trial will conducted smoothly. These processes basically designed for ensuring the presence of accused, witness and individual, as well as these processes also ensure fair investigation and trial. It is because of this reason when we see the processes which is being dealt under 63 to 93, we will find less restrictive to more restrictive processes being compiled under this section, so that to ensure the presence of accused. Then the first question before us, what are those processes which is being mentioned under chapter 6? So to ensuring the presence of these processes are summon, warrant, proclamation of an absconder, attachment of his property and bond with or without surety appear before court on certain date. It means these are the processes which is being defined under Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita for ensuring the presence of accused, individual and witnesses. And the first process is summon. Then if summon is not properly complied, then the warrant of arrest, then proclamation, then attachment. It means what? The less restrictive process is summon for ensuring the presence of accused, witness and individual. Once this less restrictive cannot be worked, then step by step what we will find, warrant of arrest, then proclamation, then attachment is being issued by the court for ensuring the presence, because the presence of accused, witness and individual is necessary for the purpose to carry out investigation, inquiry and trial. Then come to the first process, that is summon. The provision in respect of this process, summon, is being given under section 63 to 71. Means the provision 63 to 71 talks about summon. Then firstly we will like to understand what is summon, because normally we heard about court issues the summon or I receives the summon. This kind of terminology we always we heard in day-to-day our life. Then what is summon? What is the legal definition of summon? What the summon means? Summon is an order or direction issued by a court in writing, directing a person to appear in particular place and particular time. Means summon is a document issued by a court for directing the presence of any individual in particular place and particular time. This is an authentic legal definition of summon. Now, once we see section 63, what we will find, section 63 talk about form of summon.
Form of summon means in what form the summon is being issued by a court under Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita. So section 63 made it clear the form of summon is always issued in writing, in duplicate, signed by presiding officer of court, and it bears the seal of court. It means what we will notice in form of summon under section 63, 4 point is important. Summon issued is in writing, it is issued in duplicate, and then summon must be signed by the presiding officer and it must bear the seal of court. Now, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita also allowed to issue the summon digitally. It is because of this reason under section 63 you will find summon can be issued in an encrypted means something which can be digitally converted, some information digitally converted in coded information, कोड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, that is called encrypted, so that it can be not be unauthorized being used. इसको unauthorized रूप से यूज नहीं किया जा सके और only the sender and receiver can see this document. So the summon can be also issued encrypted or any other form of electronic communication. Here the electronic communication means through an electronic and digital device. The summon can be also issued and it bears the image of court and image of seal of court and a digital signature. This way what we will understand the form of summon. The summon can be issued in writing, in duplicate, signed by the presiding officer of court, or it bears the seal of court. Or summon can be issued by any other means of electronic communication which bears the image of seal of court or a digital signature. So this way what we will understand is now the summon can be also issued digitally. Now once we understand the form of summon, the basic issue in respect of summon is service of summon, how the summon can be served. Here the term how the summon can be served includes or encompasses three important concepts. Who serve the summon, again to whom the summon can be served, and how the service of summon can be completed. These are the three concepts which is being discussed here. Summon, how, served. So it is being a clarity here. We need to take clarity. एकदम clear हो जाना है कि only it is not essential in law to issue the summon. Once the summon is being issued, its service of summon is also very important thing. And in this context, we are here going to discuss who will serve the summon and to whom the summon is required to be served and when the service of summon is said to be completed. किन लोगों को समन को सर्व करना है, किसको समन सर्व किया जाना चाहिए और सर्विस ऑफ समन कैसे कंप्लीट माना जाता है. बिकॉज वंस वी नो द समन इज फॉर द पर्पस टू अपीयरेंस ऑफ पर्सन, तो द पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी अपीयर मस्ट हैव रिसीव द समन. उसको समन रिसीव भी करना जरूरी है सो दैट ही मस्ट इंश्योर his appearance. It is because of this reason, in order to compliance of the natural justice, in order to compliance our constitutional mandate, the provision of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita makes a elaborate step for service of summon, and which we are going to discuss under the head summon how serve. Now who will serve the summon? Summon कौन सर्व करेगा? तो summon can be served by the police officer or the officer of court or by the any public servant. तीन लोग सर्व कर सकते हैं जैसा कि 64 में बताया जा रहा है. Summon shall served by the police officer or by any officer of court or the any other public servant. Now if the summon is bearing the image
of court or having a digital signature means the summon is being digitally issued. अगर summon को digitally issued किया गया है तो in that the state government can make a rule that how this digital summon can be served. So now it is being clear who will serve the summon, police officer, officer of the court or public servant. To whom the summon can be served, किसको सम्मन दिया जाना चाहिए. The summon shall if practicable be served personally on the person summoned. सम्मन किसको दिया जाना चाहिए, जिसके नाम से सम्मन इशू हुआ है उसको पर्सनली सर्व किया जाना चाहिए. दिस इज द बेस्ट वे कंसिडर्ड फॉर सर्विस ऑफ सम्मन. तो दूसरी बात हम लोग यहाँ समझे कि सम्मन को किसको सर्व करना है, पर्सनली जिसके लिए सम्मन इशू हुआ है उसको सर्व करना है. बेस्ट थिंग इज दैट इफ let it suppose personal service of someone is not possible. Personal service possible नहीं है means by the due diligence of serving authority the person is not found. कि पूरा ड्यू डिलिजेंस लिया गया सर्विंग अथॉरिटी के द्वारा लेकिन पर्सनली जो है वो पर्सन नहीं मिल रहा है. तो हियर सेक्शन 66 talks about service when person summoned cannot be found. जब सर्विस किया गया लेकिन पर्सन जो है वो नहीं पाया जा रहा है. पहली बात किसको देना है, पर्सनली देना है. अगर पर्सनली जो है बाय द ड्यू डिलिजेंस सर्विंग अथॉरिटी उसको फाउंड नहीं कर पा रहा है तो किसको देना है, समवन में बी सर्व लिविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट फॉर हिम टू सम एडल्ट मेंबर ऑफ हिज फैमिली. तो दूसरी बात क्या समझे कि पर्सन पर्सनली देना है. पर्सन को पर्सनली अगर नहीं मिल रहा है तो इट कैन बी लीव सम एडल्ट पर्सन ऑफ एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली. एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली को देना है. अब लेट इट सपोज कि सर्विस ऑफ समवन पर्सनली भी नहीं हो पा रहा और एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली भी नहीं मिल पा रहा. देन क्या करना है, तो देन 67 टॉक्स अबाउट कि if service of someone cannot exercise by due diligence personally or some adult member of family under section 66 the serving officer shall affix one of the duplicate to conspicuous part of the house. means उसको उसके हाउस पे चिपका देना है सम्मन को. so this is the third way through which the summon can be served. now इस तरह से हम लोगों ने क्या समझा कि सम्मन को सर्व किसको करना है, तो पुलिस ऑफिसर, ऑफिसर ऑफ कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट को सर्व करना है. डिजिटल इशू किया गया तो स्टेट गवर्नमेंट के रूल के अनुसार उसको सर्व करना है. किसको देना है, तो जिसके पर्सन के अगेंस्ट में है उसी को प्रैक्टिकली है कि भाई सबसे पहले उसी को खोजना और उसी को देना. अगर वो नहीं मिला तो सम एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली को देना. और दोनों नहीं मिले, पर्सनली भी नहीं मिला और एडल्ट मेंबर ऑफ फैमिली नहीं मिला, तो सेक्शन 67 के अनुसार उस पर्सन के घर में सम कंस्पिक्यूअस पार्ट में चिपका देना है. तो दिस वे 2 क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड. हु विल सर्व द सम्मन and to whom the summon is being served. Now when the service of summon is being completed the third question need to be answered. तीसरे क्वेश्चन को हम लोग को आंसर करना है. अगर पर्सनली सर्व कर रहे हैं, पर जो पर्सन है उसको सर्व कर रहे हैं, या फिर हम लोग एडल्ट मेंबर फैमिली करना है, तो एक इसलिए हम लोग बोले सम्मन को डुप्लीकेट में डुप्लीकेट कॉपी दे करके उस पर रिसीव करा लेना है. तो देन द सम्मन इज सेड टू बी सर्व. तब कहा जाएगा कि सम्मन सर्व हो गया. और अगर कंस्पिक्यूअस पार्ट ऑफ हाउस में हम उसको एफिक्स कर रहे हैं, मीन्स चिपका रहे हैं ड्यू डिलिजेंस से नहीं मिलने के कारण, तो इस दशा में वंस वी सी द सेक्शन 67 व्हाट वी विल फाइंड कि कोर्ट विल मेक एन इंक्वायरी एंड आफ्टर इंक्वायरी कोर्ट विल मेक डिक्लेयर दैट वेदर द सम्मन इज बीइंग सर्व्ड और नॉट. तो दिस वे वी विल अंडरस्टैंड कि सम्मन को सर्व कौन करेगा, किसको सर्व करना है और कैसे सर्विस ऑफ सम्मन कंप्लीट माना जाएगा. तो दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्विस का इशू, सम्मन का इशू होना और सम्मन का सर्विस होना, और इस तरह से लॉ सर्विस ऑफ सम्मन को कंप्लाई करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को यहाँ पे सेटिस्फाई करता है. नाउ सर्विस ऑफ सम्मन इन सम स्पेशल केसेस, द प्रोविजन also made clear कि some special cases how the service of someone is being made. तो here the service of someone on corporate body, firm and society.
अगर लेट इट सपोज समन को सर्व किसको करना है, कॉर्पोरेट बॉडीज़ को, सोसाइटीज़ को और फर्म को, तो सेक्शन 65 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इज बिकेम इम्पॉर्टेंट। तो आप 65 देखेंगे तो यू विल फाइंड सो फार एज द समन इज बीइंग सर्व टू कॉर्पोरेट बॉडी, फर्म एंड सोसाइटी, here the service can be effected to serving it on the director, manager and secretary or other officer of company or corporation, or by letter sent by a registered post of address of director, manager, secretary or other officers of the company or corporation in India। तो यहाँ पे कॉरपोरेट के जो डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, सेक्रेटरी है, या तो उनको डायरेक्टली सर्व कर दिया जाए, दैट इज़ वन वे, और थ्रू द रजिस्टर्ड पोस्ट जो है वो कंपनी के जो ऑफिशियल एड्रेस है उस पर उसको भेज दिया जाए। तो इन दैट वे द सर्विस ऑफ समन in respect of corporate body, firms and society is being made। Now service on government servant, गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस कैसे करना है। गवर्नमेंट सर्वेंट मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को अगर आपको समन सर्व करना है तो हियर देयर इज सेक्शन 68 which talks about service of summon to the government servant। Here the summon is directly sent to the head of the department of that government servant। हेड को डायरेक्ट भेज दिया जाता है एंड नाउ इट इज़ द ड्यूटी ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट टू सर्व इन अ वे एज द समन इज बीइंग सर्व्ड अंडर सेक्शन 64। जिस तरह से 64 में डायरेक्टली उसको दे दिया जाए और उससे डुप्लीकेट में साइन करा के ले लिया जाए, ये वाली जो बात है टेंडरिंग वन कॉपी ऑफ समन एंड टेक द सिग्नेचर ऑन डुप्लीकेट कॉपी, ये यहाँ पे फॉलो होगा सर्विस और गवर्नमेंट सर्वेंट। तो इस तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट को समन सर्व कराया जाता है। Now 69 says service of summon outside the local limit। Sometimes summon is required to serve outside the jurisdiction of court। It means the court issuing the summon उनके jurisdiction में नहीं सर्व कराना है, उनके jurisdiction के बाहर जो है वो summon को सर्व कराना है। तो in that case section 69 make it clear कि summon को हम लोगों को उस jurisdiction के magistrate के पास भेज देना है, directly sent to the magistrate of the jurisdiction where the summon is required to be served। जहाँ पे summon को सर्व किया जाना है वहाँ पे उसको भेज देना है। and now it is a duty of that magistrate to serve the summon as the procedure provided earlier। उस प्रोसीजर से जैसे कि प्रोसीजर पहले बताया गया है उसी तरह से summon को सर्व करा दिया जाएगा। now section 71 is a summon to witness कि विटनेस को समन क्या करना है। तो नॉर्मल मोड से 71 में क्लियर कर रहा है कि नॉर्मल मोड से तो सर्विस विटनेस को किया ही जाएगा जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया। इन एडिशन टू इट विटनेसेस को समन रजिस्टर्ड पोस्ट से या डिजिटल माध्यम से भी समन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से भी समन कर देना अच्छा माना जाता है एज पर सेक्शन 71। तो दिस वे व्हाट वी विल अंडरस्टैंड कि the provision in respect of summon made it clear what should be the form of summon, किस फॉर्म में समन को इशू किया जाएगा, then how the service of summon is to be made and how in a special situation summon can be served। Again so far as the form of summon is concerned, here second schedule of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता is also important। तो second schedule of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता basically provide various form for different processes। Here form number 2 once we see, जब form number 2 को हम लोग देखेंगे we will come to know कि what will be the format of the summon to an accused person, वहाँ आप form number 2 में पाएंगे और वहाँ पे आप you will come to know the format। ये बस देखने की बात है, देख लेना चाहिए so that कि मतलब form और format जो है वो clear हो जाए। Now the first process which is being conceptualized under section 63 to 93 is being clear and that is summon, and the provision of summon is section 62 to 71। Now the second one is warrant of arrest। The second process which is being conceptualized under these chapter is warrant of arrest, and once we see the provision of warrant of arrest you will find under section 72 to 83। वारंट ऑफ अरेस्ट का प्रोविजन 72 to 83 में हम लोग देख पा रहे हैं। तो एट द टाइम व्हेन वी आर डिस्कसिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट
तो अरेस्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अरेस्ट इज अंडर टू टाइप, अरेस्ट विदाउट वारंट एंड अरेस्ट विथ वारंट, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। और एट दैट टाइम वी विल से कि अरेस्ट विथ वारंट का प्रोविज़न डिटेल में जो है वो 72 से 83 में दिया गया है। और वहीं पे हम लोगों ने ये बात किया था कि अरेस्ट विथ वारंट का जो प्रोविज़न है कि व्हाट इज़ दिस वारंट ऑफ अरेस्ट, in what form the warrant of arrest is being issued, what is the kind of warrant of arrest, how the warrant of arrest can be executed, these all details is being given under section 72 to 83। ये सारे डिटेल जो है वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में ये 72 से 83 सेकेंड प्रोसेस के रूप में हम लोग इसको यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि दिस इज़ अ सेकेंड प्रोसेस, कि सम्मन जब किए और सम्मन नहीं सक्सेसफुल रहा और अपीयरेंस हम इंश्योर नहीं कर पाए तो हम लोग नॉर्मली वारंट इशू करते हैं, या वारंट केसेस में जो हम लोगों ने कहा कि वारंट केस होते हैं, समन केस और वारंट केस होते हैं, तो वारंट में हम लोग वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ वारंट ऑफ अरेस्ट। जैसा कि समन में हम लोगों ने देखा कि समन इज ऑर्डर ए डायरेक्शन इशूड बाय ए कोर्ट डायरेक्टली टू द पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन अ कोर्ट इन पर्टिकुलर टाइम एंड पर्टिकुलर प्लेस। डायरेक्ट पर्सन को दिया जाने वाला आदेश है कि आप आइए और इस पर्टिकुलर डेट और टाइम में प्रेजेंट हुए। पर वारंट ऑफ अरेस्ट इज एन ऑर्डर, वारंट इज एन ऑफिशियल ऑथराइजेशन enabling police officer or some other person to arrest someone। means here the court not directly direct to the person who is required to be present, here the court by an order authorize someone to go and arrest that person and produce before the court। this is the difference between summon and warrant। Summon is directly issued the person to whose presence is required in court, and warrant is also a direction or order of the court, but here the court authorizing police officer or any other person to bring that person before the court। it means कि डायरेक्शन जो वारंट ऑफ अरेस्ट में दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? पुलिस ऑफिसर को, कि आप जाइए और आप उसको गिरफ्तार करके लेके आइए। तो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन समन एंड वारंट ऑफ अरेस्ट। नाउ कमिंग टू द 72 दैट टॉक्स अबाउट कि वो इन व्हाट फॉर्म द वारंट ऑफ अरेस्ट इज बीइंग इशूड। जैसा कि हम लोगों ने समन के फॉर्म के बारे में डिस्कस किया, उसी तरह से 72 जो है फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड इट्स ड्यूरेशन के बारे में बात करता है। तो हियर द वारंट ऑफ अरेस्ट इज इशूड बाय ए कोर्ट अंडर दिस संहिता शैल बी इन राइटिंग signed by the presiding officer of such court and such shall bear the seal of court। और इस पे सील ऑफ कोर्ट लगा हुआ रहता है। तो जैसा कि सम्मन में हम लोग जब बात कर रहे थे, सम्मन इज ऑल्सो इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ कोर्ट इन डुप्लीकेट, बट हियर व्हाट यू विल नोटिस अंडर सेक्शन 72 the warrant is not required to be issued in duplicate। so this is also a second difference between summon and warrant। summon always issued in duplicate, but warrant is not required to issued in duplicate। the rest of the thing in respect of form is same। the warrant is also issued in writing, must bear the sign of the presiding officer and seal of the court। और कब तक ये वारंट का ड्यूरेशन क्या है? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिटी सेक्शन 72 में दे दिया गया है कि वारंट इज एग्जिस्टेड टिल इट इज़ एग्जीक्यूटेड, जब तक इसको या तो एग्जीक्यूट ना करा दिया गया हो या टिल इट इज़ कैंसल्ड बाय द कोर्ट। एवरी सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज़ कैंसल्ड बाय द कोर्ट एंड विच इशूड इट और अंटिल इट इज़ एग्जीक्यूटेड। तो कभी भी हम लोग ऐसा सुने कि कोर्ट ने वारंट इशू कर दिया है तो या तो वो वारंट एग्जीक्यूट होगा या तो हम लोगों को कोर्ट से उसको कैंसिल कराना पड़ेगा। इन दोनों में से अगर कुछ भी नहीं हुआ है तो वारंट फोर्स में रहेगा। सो दैट सेक्शन 72 मेड इट क्लियर इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट। ये वारंट ऑफ अरेस्ट तब तक फोर्स में रहता है जब तक या तो वो कैंसिल ना हो जाए या तब तक जो है वो एग्जीक्यूट ना हो जाए। नाउ इन BNSS there is no description of type of warrant of arrest।
वारंट ऑफ अरेस्ट के रिस्पेक्ट में कोई टाइप नहीं बताया गया, बट वंस वी सी द इम्प्लीकेशन ऑफ सेक्शन 73 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जब हम लोग सेक्शन 73 पढ़ेंगे और उसके इम्प्लीकेशंस को देखेंगे तो वी कम टू नो कि नहीं, वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो दो तरह का हो सकता है, या तो बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट हो सकता है या तो नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट हो सकता है। तो बाय द इम्प्लीकेशन ऑफ सेक्शन 73 वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, हम लोग ये बात समझते हैं कि वारंट ऑफ अरेस्ट में बी आइदर बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट और नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट। तो सेक्शन 73 सेज डील्स विथ अ बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट, वो बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। जब 73 का हम लोग मार्जिनल नोट देते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं कि वहाँ लिखा हुआ है पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, मीन्स कोर्ट हैज़ पावर टू डायरेक्ट द पर्सन हु इज अरेस्टिंग द पर्सन टू whom द कोर्ट इज डायरेक्टेड कि आप उसको अरेस्ट करिए, उनको ये डायरेक्ट रहता है कि आप अरेस्ट के बाद जो है वो सिक्योरिटी ले सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह से लिखा हुआ है, और उसको हम लोग दूसरी भाषा में ये समझते हैं कि अच्छा 73 जो है वो बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। तो कोई भी कोर्ट जो वारंट ऑफ अरेस्ट को इशू करती है अपने डिस्क्रिशन पे, वो उस वारंट ऑफ अरेस्ट में ये इंडोर्समेंट कर सकती है कि वंस द पर्सन इज अरेस्टेड ही विल बी रिलीज बाय टेकिंग बॉन्ड और बेल बॉन्ड विथ और विदाउट सियोरिटी, ये ऐसा कह सकती है। उस वारंट ऑफ अरेस्ट में ये लिखा हुआ रहेगा। तो जिस भी वारंट ऑफ अरेस्ट में इस तरह का इंडोर्समेंट इशूइंग कोर्ट के द्वारा किया जाता है, उसी वारंट ऑफ अरेस्ट को हम लोग क्या समझते हैं कि ये वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट है, क्योंकि उसमें ऐसा इंडोर्समेंट है, वैसा लिखा हुआ है उनके लिए जिसको डायरेक्ट किया गया है अरेस्ट करने के लिए कि आप चाहे तो सिक्योरिटी ले करके उस पर्सन को उसी समय बेल या बेल बॉन्ड पे छोड़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं, सो दैट दिस 73 विल बी अंडरस्टूड इन अ सेंस बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट। और इंडोर्समेंट में स्टेट किया जाता है कोर्ट के द्वारा कि व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सियोरिटी, उसका नंबर ऑफ सियोरिटी कितना होना चाहिए, द अमाउंट कितना होना चाहिए इन विच एंड द पर्सन हुज अरेस्ट वारंट इज इशूड आर टू बी रिस्पेक्टिवली बाउंड, किस अमाउंट पे छोड़ना चाहिए, द टाइम एट विच ही इज अटेंड बिफोर कोर्ट, कि कौन से टाइम में उसको अटेंड करना। Whenever security is taken under this section, the officer to whom warrant is directed shall forward a bond to the court। और जब सिक्योरिटी इस सेक्शन के तहत जो ऑफिसर है वो लेगा और उसको रिलीज करेगा तो वो बॉन्ड को कोर्ट को डायरेक्ट कर देगा। और नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट, जहाँ पे इस तरह का इंडोर्समेंट जो कोर्ट इशू कर रही है वो नहीं करती है, तो उस तरह के वारंट ऑफ अरेस्ट को हम लोग नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट कहते हैं। तो दिस वे व्हाट वी विल अंडरस्टैंड कि वारंट ऑफ अरेस्ट में बी आइदर बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट और नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट। अगर बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट कब माना जाएगा, जब 73 की तरह उसमें डायरेक्ट किया गया है कि आप सिक्योरिटी लेके छोड़ सकते हैं, तो फिर आप उसको बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट मानते हैं। और अगर इस तरह का इंडोर्समेंट किसी भी वारंट ऑफ अरेस्ट में इशूइंग कोर्ट के द्वारा नहीं किया गया है तो उस वारंट ऑफ अरेस्ट को नॉन बेलेबल वारंट ऑफ अरेस्ट माना जाता है, मतलब NBW माना जाता है। अब जब हम लोगों ने वारंट ऑफ अरेस्ट देखा तो समझा कि यहाँ पे डायरेक्ट पर्सन जिसके प्रेजेंस को इंश्योर करना है उसको कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर रही है। डायरेक्ट किसको कर रही है, तो यहाँ पे 74 में ये क्लैरिटी दिया है कि वारंट ऑफ अरेस्ट में कोर्ट किसको डायरेक्ट कर सकती है, मीन्स वारंट टू हुम डायरेक्टेड। सेक्शन 74 जब आप पढ़ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि वारंट किसको डायरेक्ट किया जाएगा, यानी ये क्लियर है वारंट किसी को डायरेक्ट किया जाता है, डायरेक्टली उस व्यक्ति को नहीं किया जाता है जिस व्यक्ति का प्रेजेंस रिक्वायर्ड। तो वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरली बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर, और if immediate execution is necessary, no police officer is immediately available, direct it to any other person or person. It means warrant court can direct the warrant either to the police officer, or if no police officer is immediately available, to any other person. किसी पर्सन को भी डायरेक्ट किया जा सकता है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि जो वारंट कोर्ट इशू करती है उसमें किसको डायरेक्ट किया जा सकता है, तो आपको यहाँ आंसर क्लियर मिल गया कि आइदर टू द पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जा सकता है या एनी अदर
पर्सन को भी वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए डायरेक्ट किया जा सकता है। नाउ पुलिस ऑफिसर को जब डायरेक्ट किया जाएगा, सेक्शन 75 में क्लियर किया गया है कि अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर कब जो है एनी अदर पर्सन को डायरेक्ट किया जा सकता है, ये 75 में बताया गया है। और 76 में पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट किया जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में लीगल इम्प्लीकेशन को बताया गया है। तो 75 मेड इट क्लियर कि एनी अदर पर्सन को जो डायरेक्ट करने के लिए बात किया जा रहा है, ये जो डायरेक्ट किया जाएगा ये किस केसेस में किया जाएगा? प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स के केसेस में किया जाएगा, या एस्केप्ड कन्विक्ट के केसेस में किया जाएगा, या नॉन बेलेबल ऑफेंस में वारंट को एग्जीक्यूट कराना है तो किया जा सकता है। दिस वे व्हाट वी विल अंडरस्टैंड कि एनी अदर पर्सन को वारंट तो डायरेक्ट किया जा सकता है, बट यहाँ सेक्शन 75 का जो मैंडेट है वो क्लियर होना चाहिए। नाउ 76 की जब किसी भी पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट किया जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, तो दैट पुलिस ऑफिसर इज ऑल्सो ऑथराइज्ड टू मेक एन एंडोर्समेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पुलिस ऑफिसर टू एग्जीक्यूट इट, कि अदर पुलिस ऑफिसर के रिस्पेक्ट में भी वो एंडोर्समेंट कर सकता है जिससे कि अदर पुलिस ऑफिसर भी उसको एग्जीक्यूट करा सकता है। दैट इज सेक्शन 76। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। कभी कभी पूछा जाता है कि जिसको डायरेक्ट किया गया है, जिस पुलिस ऑफिसर, क्या वही केवल एग्जीक्यूट कर सकता है? तो यहाँ आपको एक क्लैरिटी रखना है कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसको डायरेक्ट किया गया है वही केवल एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर वो जिसको डायरेक्ट किया गया है पुलिस ऑफिसर को, वो अगर किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में एंडोर्समेंट करता है तो वो भी उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ सेक्शन 75, 76 एंड 74 समझा कि वारंट जो है कोर्ट किसको डायरेक्ट करती है, तो पुलिस ऑफिसर को या एनी अदर पर्सन को। और एनी अदर पर्सन को कब डायरेक्ट करती है, तो सेक्शन 75 इज इम्पॉर्टेंट। और जब पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट करती है तो क्या वो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में एंडोर्समेंट कर सकता है, तो सेक्शन 76 इज इम्पॉर्टेंट। नाउ 77 एंड 78 is a general compliance in respect of arrest warrant। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस है जिसको हम लोग राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन के रिस्पेक्ट में भी समझते हैं कि जब भी अरेस्ट विथ वारंट होता है तो सब्सटेंस ऑफ वारंट नीड टू बी नोटिफाइड। ये सब्सटेंस ऑफ वारंट उसको बता देना है, एंड इफ़ रिक्वायर्ड shall show him to a copy of warrant of arrest also। और अगर रिक्वायर्ड है, अगर पर्सन पूछ रहा है कि भाई हमको वारंट ऑफ अरेस्ट की कॉपी दिखाइए, तो उसको भी कॉपी को दिखा देना है अगर वो रिक्वायर्ड है तो। 77 यानी कि जनरल कंप्लायंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस है। इवन अगर पुलिस अथॉरिटी गो और एनी पर्सन गो विथ वारंट एंड इट्स एग्जीक्यूशन इज बीइंग रिक्वायर्ड अगेंस्ट सम पर्सन, तो इफ it need to be informed what are the grounds upon which that person is required to be arrested। 78 is also a legal compliance। If the person is being arrested, he must be produced before a magistrate without unnecessary delay within 24 hours। And here the 24 hours exclude the time of necessary journey from place of arrest to the magistrate court। So that is also a general compliance। So 77 and 78 is in respect of specific provision to notify the substance of warrant, and 78 produced before a magistrate within 24 hours of arrest। Now one legal question in respect of warrant of arrest becomes very important, and that we are now going to be discuss। Warrant executed throughout any place in India। So section 79 made it clear that once warrant is being issued by any court, it can be executed at any place in India। किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर वारंट इशू किया गया तो उसको एग्जीक्यूट किसी भी जगह कराया जा सकता है। इसका इम्प्लीकेशन ये है, इट मीन्स व्हाट, इफ अ दिल्ली कोर्ट इशू द वारंट, can it be executed outside the jurisdiction of Delhi court, or can it be executed in Mumbai, in Patna, in Gujarat? So the answer as per the section 79 is yes, it can be executed any place in India। that is being very clear। कोई भी कोर्ट वारंट को इशू करे, पर इसका एग्जीक्यूशन थ्रू आउट
इंडिया हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्लैरिटी रखना है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो कोर्ट वारंट इशू करती है उसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में उस वारंट को एग्जीक्यूट कराया जा सकता, नहीं, आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ दैट कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। इफ़ यू सी केयरफुली और इफ़ यू रीड केयरफुली सेक्शन 79 मेक इट क्लियर अ वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। तो ये आंसर क्लियर हो गया कि कोई भी वारंट इशू किया किसी कोर्ट ने तो उसको किसी भी जगह एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट भी उसको कराया जा सकता है। Now the second important question is how it can be executed outside the jurisdiction of issuing court। कि जिस कोर्ट ने इशू किया उसके बाहर कैसे उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड दैट क्वेश्चन द मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ इशूइंग कोर्ट इज बीइंग गिवन आइदर इन सेक्शन 80 और इन सेक्शन 81। So why these two sections are important? It is because section 80 talks about one method and section 81 talks about another method। दोनों मेथड से आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ इशूइंग कोर्ट उस वारंट को एग्जीक्यूट कराया जा सकता है। इसीलिए सेक्शन 80 भी इंपॉर्टेंट है, दैट टॉक्स अबाउट वन मेथड, एक मेथड के बारे में बात कर रहा, और 81 जो है वो दूसरे मेथड के बारे में बात कर रहा। और इट इज़ अप टू द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट कि वो किस मेथड, जो कोर्ट इशू कर रही है वारंट को, वो किस मेथड को अडॉप्ट करते हुए आउटसाइड देयर ऑन जुरिस्डिक्शन वो उसको एग्जीक्यूट कराना चाहती है। तो दोनों में से कोई भी मेथड चुना जा सकता है, और या दोनों में से जो भी उसको प्रैक्टिकल उस सिचुएशन के लिए मेथड लगता है वो ले सकती है। इसलिए यहाँ दोनों मेथड दिए गए कि आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ इशूइंग कोर्ट अगर वारंट को एग्जीक्यूट कराना है तो वो कौन से मेथड, 80 के मेथड से भी कर सकती है और 81 के मेथड से भी कर सकती है। तो सेक्शन 80 का जो मेथड है वो क्या बोलता है कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू पुलिस ऑफिसर विद इन हिज जुरिस्डिक्शन, नॉर्मली वारंट क्या करता है, डायरेक्ट करता है पुलिस ऑफिसर को, अपने जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिसर को, आप जाइए और उसको एग्जीक्यूट। तो यहाँ कह रहा है कि नहीं, आप उसको डायरेक्ट नहीं कीजिए। वारंट कैन फॉरवर्डेड बाई पोस्ट और अदरवाइज टू एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। आप उस जुरिस्डिक्शन में जहाँ पे आपको कराना है, जैसे कि दिल्ली की कोर्ट ने इशू किया और उसको मुंबई में कराना है, तो दिल्ली कोर्ट क्या करेगी, डायरेक्टली भेज देगी बाय पोस्ट वहाँ के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, मुंबई के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को, या तो फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस को, मीन्स विद वहाँ के लोकल जुरिस्डिक्शन को, कि इन सब लोगों को, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या पुलिस कमिश्नर को भेज देगी डायरेक्टली कि आप इसको वहाँ पे एग्जीक्यूट मुंबई में करा दीजिए। और दैट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड कमिश्नर शैल इंडोर्स हिज नेम देयर ऑन एंड इफ प्रैक्टिकल कॉज टू बी एग्जीक्यूटेड इन मैनर हियर इन प्रोवाइडेड, और फिर वो उसको वहाँ पे उसी मैनर से एग्जीक्यूट करा देगा। तो सेकेंड मेथड में क्या कह रहे हैं, पहला मेथड में तो क्लियर है कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस को थ्रू पोस्ट इशूइंग कोर्ट डायरेक्टली भेज देगी। लेकिन सेकेंड मेथड में कह रहा है कि वारंट जो है वो अपने ही जुरिस्डिक्शन के पुलिस ऑफिसर को आप डायरेक्ट कर दीजिए, जो वहाँ पे जाएगा और वहाँ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इन सब से वहाँ इंडोर्समेंट लेगा और फिर वहाँ पे वो इसको एग्जीक्यूट करा देगा। मतलब दिल्ली का ही पुलिस ऑफिसर को एक डायरेक्ट कर दीजिए, वो जाएगा मुंबई, वहाँ के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से बात करके फिर एग्जीक्यूट करा। यहाँ ये 82 में ध्यान देने वाली, 81 में ये ध्यान देने वाली बात ये है कि कभी कभी ऐसा क्या होता है कि वहाँ के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का पुलिस ऑफिसर के द्वारा इंडोर्समेंट लिया जाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वेयर देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट कि डिले इज ओकेजन बाय ऑब्टेनिंग द इंडोर्समेंट ऑफ मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर विद इन हुज लोकल जुरिस्डिक्शन वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड, वहाँ के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और वहाँ के पुलिस ऑफिसर से इंडोर्समेंट लेने में डिले होगा, तब क्या है कि द पुलिस ऑफिसर टू हुम इट इज़ बीइंग डायरेक्टेड में एग्जीक्यूट द सेम विदाउट सच इंडोर्समेंट, मतलब वहाँ से वो बिना परमिशन से वो उसको एग्जीक्यूट करा सकता है और उस लोकल जुरिस्डिक्शन में बाद में उसको इशू कर सकता है। इसको हम लोग एग्जाम्पल के मदद से समझे कि दिल्ली कोर्ट ने इशू किया वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट ए पर्सन हु इज़ करेंटली रिसाइडिंग इन मुंबई। दिल्ली कोर्ट ने इशू किया, मीन्स इशूइंग कोर्ट कौन सा हो गया, दिल्ली कोर्ट। एग्जीक्यूट कहाँ होना है, मुंबई में रहता है पर्सन, यानी कि मुंबई में एग्जीक्यूट होना है। सिंस मुंबई फॉल आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिल्ली कोर्ट,
तो यहाँ पे दिल्ली कोर्ट से आउटसाइड जुरिस्डिक्शन मुंबई हो गया। तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है एज पर हम लोग जो 80, 81 हम लोग पढ़े, तो 79 में क्लियर है कि वारंट जो है वो एग्जीक्यूट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया का एनी प्लेस इन इंडिया हो सकता है। तो वारंट अगर दिल्ली कोर्ट ने इशू किया तो क्या वो मुंबई में एग्जीक्यूट हो सकता है? तो बोला यस हो सकता है 79 के अनुसार। तो यहाँ पे क्या करना होगा, दिल्ली कोर्ट को या तो डायरेक्टली वारंट मुंबई के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस को भेज देना होगा फॉर द एग्जीक्यूशन करने के, या फिर दिल्ली कोर्ट क्या करेगी, वारंट डायरेक्ट करेगी अपने ही पुलिस ऑफिसर के जो को और बोलेगी कि वहाँ जाके आप उस वारंट को एग्जीक्यूट करा दीजिए। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि वंस द वारंट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ इशूइंग कोर्ट, तो ये तो हो सकता है, ये क्लियर हम लोगों ने देखा 80 के मेथड से हो सकता है या फिर 81 के मेथड से। तो अगर वारंट आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन एग्जीक्यूट हो गया और एग्जीक्यूट होने के बाद उस व्यक्ति को वहाँ पे कस्टडी में ले लिया गया, तो उसको प्रोड्यूस कहाँ किया जाएगा, बिकॉज अनऑथराइज रूप से हम उसको बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं रख सकते। तो यहाँ ये भी रूल करना होगा कि अगर आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन वो व्यक्ति पकड़ा गया उस वारंट के एग्जीक्यूशन के दौरान, तो फिर उसको प्रोड्यूस कहाँ करना पड़ेगा। तो सेक्शन 82 बिकेम द इम्पॉर्टेंट सेक्शन विच टॉक्स अबाउट प्रोडक्शन ऑफ दैट पर्सन इफ़ विद इन द 30 किलोमीटर रेडियस अगर वो है इशूइंग कोर्ट के, तो इशूइंग कोर्ट में करना होगा, या फिर नियरेस्ट है एग्जीक्यूटिव इशूइंग कोर्ट के, तो इशूइंग कोर्ट में करना हो। अगर 30 किलोमीटर रेडियस में नहीं है तो वहाँ के हम लोगों ने जो बोला एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस के सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, दैट इज सेक्शन 82। अब नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन इज हियर कि प्रोड्यूस कर तो दिए हम लोग 82 के अनुसार, अब क्या वो व्यक्ति वहाँ से बेल ले सकता है या नहीं ले सकता है, क्या उसको वहाँ से बेल दिया जा सकता है। मीन्स हमारे एग्जाम्पल में दिल्ली कोर्ट ने इशू किया था, मीन्स इशू कोर्ट दिल्ली कोर्ट था और एग्जीक्यूट कहाँ हुआ, मुंबई में। तो मुंबई के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के सामने उसको प्रोड्यूस किया गया है आफ्टर द अरेस्ट, तो वो वहाँ से बेल ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो फॉर दिस सेक्शन 83 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 83 सेज कि इफ़ द ऑफेंस इज बेलेबल, तो डॉक्यूमेंट तो उसका चला गया है, जहाँ भी 80 में हम लोग देख रहे हैं 80 में डॉक्यूमेंट भी चला जाता है उसके साथ, रिक्वेस्ट के साथ कि इसको एग्जीक्यूट करा दीजिए, तो उसके साथ डॉक्यूमेंट भी चला गया। तो उस डॉक्यूमेंट को देखते हुए अगर ऑफेंस बेलेबल है तो वहाँ से भी बेल ले सकता है, और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो वहाँ के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा, और वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट चाहे तो वहाँ से भी बेल दे सकता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ ने 3 क्वेश्चंस को आंसर किया जो बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस थे, और ये हमेशा पूछे जाते हैं कि क्या वारंट ऑफ अरेस्ट जो इशू कोर्ट करती है उसके जुरिस्डिक्शन में ही एग्जीक्यूट कराया जा सकता है या बाहर के कोर्ट में भी कराया जा सकता है। तो सेक्शन 79 के अनुसार आप आंसर दे देंगे नहीं सर, वारंट ऑफ अरेस्ट जो है एग्जीक्यूट एनी प्लेस इन इंडिया कराया जा सकता है। कैसे कराया जा सकता है, तो सेक्शन 80 और 81 के अनुसार आप आंसर कर देंगे। अच्छा, वहाँ करा लिया गया तो फिर उसको कहाँ प्रोड्यूस किया जाएगा, तो 82 के अनुसार आप उसका आंसर देंगे। प्रोड्यूस किया गया तो क्या वो वहाँ से बेल ले सकता है या नहीं ले सकता है, तो यस ले सकता है। सेक्शन 83 के अनुसार आप आंसर करेंगे। नाउ तो नॉर्मल रूल ऑफ प्रोसीजर इज कि उसको डायरेक्ट कर दिया जाता है उस कोर्ट के कस्टडी के लिए जिस कोर्ट ने उसका वारंट इशू किया था। तो इसलिए हम लोग याद है रिप्रेजेंटेशन बिफोर लोकल कोर्ट आफ्टर द अरेस्ट द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द लोकल मैजिस्ट्रेट इन मुंबई हु में रिलीज द पर्सन, रिलीज कर सकता है बेल पे या डायरेक्ट कर सकता है पर्सन टू ट्रांसफर टू द दिल्ली कोर्ट। तो दिस वे वी अंडरस्टैंड कि वारंट कैन बी एग्जीक्यूटेड एनी प्लेस इन इंडिया। और इस तरह से हम लोगों ने अपने सेकेंड प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन को ख़त्म किया। तो पहला प्रोसेस समन था और दूसरा प्रोसेस वारंट ऑफ अरेस्ट था। जब आप शेड्यूल 2 में फॉर्म्स को देखेंगे तो फॉर्म 3 में आप वारंट ऑफ अरेस्ट के फॉर्म को वहाँ देख सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या होगा। नाउ द थर्ड प्रोसेस विच इज बीइंग गिवन इज अ प्रोक्लेमेशन and the fourth one is an attachment. तो here we are going to talk proclamation. Proclamation को सामान्य भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, उद्घोषणा। उद्घोषणा
करना। तो सेक्शन 84 टॉक्स अबाउट कि इफ एनी कोर्ट हैज़ रीज़न टू बिलीव वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और बिफोर टेकिंग एविडेंस दैट एनी पर्सन अगेंस्ट होम, जिसके लिए वारंट इशू किया गया है, वो पर्सन क्या कर रहा है, एब्सकॉन्ड कर गया, भाग रहा है, या फिर वो अपने आप को कंसील कर रहा है इस तरीके से कि वो वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो एग्जीक्यूट ना हो पाए। तो यानी कि क्लियर है कि समन किए तो भी नहीं अपीयर हुआ, वारंट ऑफ अरेस्ट किए तो वो भाग रहा है, एब्सकॉन्ड कर गया है, या फिर वो अपने आप को कंसील कर रहा है। तो हियर द सेक्शन 84 मेड इट क्लियर इन सच केस कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन। इस तरह के केस में कोर्ट क्या करेगी, एक रिटन प्रोक्लेमेशन इशू करेगी, और उस रिटन प्रोक्लेमेशन में ये रिक्वायर किया जाएगा कि सच पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर एट स्पेसिफाइड प्लेस एंड स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन विदिन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। तो क्लियर हो गया कि वारंट ऑफ अरेस्ट अगर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है और कोर्ट को रीज़न टू बिलीव हो गया कि एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो पा रहा है कि वो एब्सकॉन्ड कर जा रहा है, या फिर अपने अपीयरेंस को कंसील करने के कारण वो वारंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, तो कोर्ट क्या करेगी, प्रोक्लेमेशन इशू करेगी, और उस प्रोक्लेमेशन में ये डिक्लेयर करेगी कि इस पर्सन को 30 दिन के अंदर इस प्लेस पे अपीयर हो जाना है। नाउ जैसा कि हम लोगों ने समन में देखा कि समन का केवल इशू होना ही ज़रूरी नहीं है, उसका सर्व होना भी ज़रूरी है। सिमिलरली केवल पब्लिकेशन कर देना इज़ नॉट इनसफिशिएंट। उस पब्लिकेशन का जिसके अगेंस्ट में, पर्सन के अगेंस्ट में पब्लिकेशन किया गया है प्रोक्लेमेशन का, उसको इंफॉर्मेशन मिलना भी इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। दैट इज़ द रीज़न ड्यू टू विच सेक्शन 84 सब सेक्शन 2 मेड इट क्लियर द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलो। कि केवल प्रोक्लेमेशन हो गया, क्या ये सफिशिएंट है उस व्यक्ति के लिए कि भाई आप आ जाइए 30 दिन के अंदर? नहीं, प्रोक्लेमेशन को पब्लिश भी करना पड़ेगा। तो कभी भी अगर ऑर्डर ऑफ प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 84 सब सेक्शन 1 होता है तो उसका पब्लिकेशन सेक्शन 84 सब सेक्शन 2 के मेथड से वो मैजिस्ट्रेट को या कोर्ट को करना ही चाहिए। तो वो पब्लिकेशन का मेथड्स दिया हुआ है कि पब्लिकेशन कैसे करते हैं प्रोक्लेमेशन को। तो इट शैल बी पब्लिकली रीड इन सम कंस्पिक्यूअस प्लेस ऑफ टाउन और विलेज। इसको पब्लिकली पढ़ा जाना चाहिए कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को ये घोषणा की जाती है कि आप कोर्ट में आइए और अपने को अपीयर करिए। और इट शैल बी एफिक्स टू सम कंस्पिक्यूअस पार्ट ऑफ हाउस, और उस जहाँ पे ऑर्डिनरली वो रिसाइड करता है उसके घर में उसको चिपका भी देना है। और ए कॉपी ऑफ सच शैल ऑल्सो बी एफिक्स्ड टू अ कॉन्स्पिक्यूअस पार्ट ऑफ कोर्ट हाउस में भी चिपका देना है। और अगर ये ज़रूरी लगे कि उस प्रोक्लेमेशन को हम लोगों को न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कराना है तो वो उसको पब्लिश करा देना है, जो उस लोकल एरिया में नॉर्मली वो न्यूज़पेपर सर्कुलेट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि 84 सबसेक्शन 1 में अगर वारंट ऑफ अरेस्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो कोर्ट क्या कर सकती है, प्रोक्लेमेशन इशू कर सकती है, और ये डायरेक्ट कर सकती है कि 30 डे के अंदर आप आई, और उस प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर को पब्लिश भी इसी मेथड से सेक्शन 84 सबसेक्शन 2 के मेथड से कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि स्टेटमेंट इन राइटिंग, और ये लिखना पड़ेगा कोर्ट को राइटिंग में कि द प्रोक्लेमेशन टू इफेक्ट दैट प्रोक्लेमेशन वाज ड्यूली पब्लिश्ड ऑन ए स्पेसिफाइड डे इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 2। और वो जो कोर्ट राइटिंग में लिखेगी दैट इज अ कंक्लूसिव एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन। तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस में नेचुरल जस्टिस का ध्यान रखा जा रहा है, रूल ऑफ लॉ का ध्यान रखा जा रहा है, फेयर इंक्वायरी और ट्रायल का ध्यान रखा जा रहा है। और इन्हीं सब चीज़ों से कि कोर्ट ने केवल प्रोक्लेमेशन कर दिया और प्रोक्लेमेशन को पब्लिश नहीं किया तो क्या होगा, नेचुरल जस्टिस का, कोर्ट ने सम्मन कर दिया पर सम्मन को सही ढंग से सर्व नहीं कराया तो नेचुरल जस्टिस का वायलेशन हो जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोसीजर जो है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन, दोनों तरह के बात को बैलेंस कर रहा है। ये बात हम लोग को प्रोविज़न पढ़ते वक्त ध्यान में रखना चाहिए।
नाउ सबसेक्शन 3 जो है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हमेशा वर्ड हम लोगों ने देखा कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय अ पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 35। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जिक्र हुआ। तो हु इज सच प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर? ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन होता है? तो किसी भी पर्सन जिसके अगेंस्ट में यहाँ प्रोक्लेमेशन पब्लिश होता है और अगर वो पनिशेबल है किस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स से और मोर, और इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या इम्प्रिजनमेंट ऑफ डेथ अंडर एनी अदर लॉ, चाहे भारतीय न्याय संहिता में पनिशेबल है या तो एनी अदर लॉ, और वो पर्सन उस प्रोक्लेमेशन के आधार पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाया, ही फेल्स टू प्रेजेंट, तब यहाँ पे कोर्ट के पास पावर है कि इंक्वायरी करके वो उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 84 में देख लिया जाना कि इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच कोर्ट कैन डिक्लेयर एनी पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। सबको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर नहीं डिक्लेयर किया जा सकता है, वो पर्सन्स को जिसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन 84 सब सेक्शन 1 में हुआ और वो पनिशेबल कितने ऑफेंस का है, 10 साल या 10 साल से ज़्यादा का, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, या फिर डेथ सेंटेंस का, तब उसको कोर्ट इंक्वायरी करके यहाँ क्लियर कर रहा है, द कोर्ट में आफ्टर मेकिंग सच इंक्वायरी करके ही उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकती है। नाउ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, दिस इज अ प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन में अब हम लोग चौथे प्रोसेस को पढ़ रहे हैं, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को, कि अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्रोक्लेमेशन के बाद किया जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि लेस रिस्ट्रिक्टिव से मोर रिस्ट्रिक्टिव प्रोसेस में हम लोग आए, समन, वारंट ऑफ अरेस्ट, देन प्रोक्लेमेशन, देन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो सेक्शन 85 टॉक्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। तो द कोर्ट इशूइंग अ प्रोक्लेमेशन, जो कोर्ट इशू कर रही है अंडर सेक्शन 84 प्रोक्लेमेशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, रीजन रिकॉर्ड करके राइटिंग में, एट एनी टाइम आफ्टर इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन, order the attachment of property movable or immovable belonging to the proclaimed person। तो कोर्ट कभी भी प्रोक्लेमेशन के बाद आफ्टर इशूइंग द प्रोक्लेमेशन रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग और डायरेक्ट द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दैट प्रोक्लेम्ड पर्सन, आइदर मूवेबल प्रॉपर्टी और अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो हियर व्हाट वी विल नोटिस अंडर सेक्शन 85 कि प्रोक्लेमेशन के बाद कभी भी, एट एनी टाइम आफ्टर द प्रोक्लेमेशन, इट मीन्स सेक्शन 84 में 30 डे, जो कि हम लोगों ने 84 में देखा कि 30 दिन के अंदर उसको उपस्थित हो जाना है उस प्रोक्लेमेशन के अनुसार। तो यहाँ पे ये क्लियर कर रहा है कि 30 डे एग्जॉस्ट हुए बिना करना है या 30 डे के बाद कभी भी अटैचमेंट हो सकता है, ऐसा कोई क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्लैरिटी 85 में क्लियर है, एट एनी टाइम सच प्रोक्लेमेशन इज बीइंग इशूड, किसी भी समय प्रोक्लेमेशन के बाद। ऐसे नॉर्मली हम लोग अगर सोचे तो कहा जा सकता है कि 30 डे जो है वो एग्जॉस्ट हो जाए तभी कोर्ट को अटैचमेंट का ऑर्डर देना चाहिए, लेकिन यहाँ क्लियर है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट में क्लियर किया है कि नहीं, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है, कोर्ट को किसी भी समय आफ्टर द प्रोक्लेमेशन अगर लगता है कि अटैचमेंट कर देना चाहिए प्रोक्लेम्ड पर्सन के प्रॉपर्टी का, जो कि मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसको वो अटैचमेंट का ऑर्डर पास कर सकती है। तो यहाँ क्लियर हो गया कि अटैचमेंट का ऑर्डर किसी भी समय आफ्टर द प्रोक्लेमेशन दिया जा सकता है। नाउ अगर हम लोग प्रोविज़ो देखना भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात, प्रोविज़ो में क्लियर कर रहा है कि साथ साथ प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर के साथ साथ अटैचमेंट का ऑर्डर किया जा सकता है। कब? जब एफिडेविट लगा के कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर दिया जाए कि जिस पर्सन के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन हो रहा है वो या तो अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दे रहा है या तो उस ज्यूरिसडिक्शन से प्रॉपर्टी को रिमूव कर दे रहा है। तो यहाँ पे प्रोक्लेमेशन के साथ साथ भी अटैचमेंट का ऑर्डर किया जा सकता है। तो इस तरह से देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट और टेक्निकल पॉइंट यहाँ आपका क्लियर हुआ कि क्या प्रोक्लेमेशन के ऑर्डर के साथ अटैचमेंट का ऑर्डर भी हो सकता है। तो आप 85 के प्रोविज़ो को रेफ़र
करिएगा और कहिएगा कि हाँ हो सकता है, इफ़ द सर्कमस्टांसेस की एफिडेविट से ये सेटिस्फाई कर दिया जाए कि जिसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू किया जा रहा है वो अपनी प्रॉपर्टी को अबाउट टू डिस्पोज ऑफ कर रहा है या फिर रिमूव कर रहा है, तो साथ में भी हो सकता है। और अगर साथ में नहीं हुआ तो प्रोक्लेमेशन के बाद कभी भी अटैचमेंट का ऑर्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकता है। तो दिस इज अ अटैचमेंट प्रोसेस टू कंपेल। ये देखने में सबसे मोर रेस्ट्रिक्टिव प्रोसेस है कि अगर आप नहीं आए तो फाइनली आपकी प्रॉपर्टी भी क्या हो सकती है, वो अटैच हो सकती है। ये बात हम लोग सेक्शन 85 से समझे। अब नाउ यहाँ पे एक बात और क्लियर कर लेना है कि अटैचमेंट के रिस्पेक्ट में क्लेम या ऑब्जेक्शन भी किया जा सकता है। द पर्सन हु इज़ गेट अफेक्टेड बाय द अटैचमेंट हु इज़ नॉट टू बी गेट इन्वॉल्व। अगर मान लेते हैं कि कोई और दूसरा व्यक्ति भी उस अटैचमेंट से प्रभावित हो गया पर वो उस केस में किसी भी तरह से दिक्कत की बात में नहीं है, वो उसमें प्रभावित हो गया, तो वो उसके लिए क्लेम या ऑब्जेक्शन भी कर सकता है। तो 86 में हम लोग उस क्लेम एंड ऑब्जेक्शन को देखते हैं कि विद इन जो है वो 6 मंथ जो है वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कर सकता है और उस क्लेम एंड ऑब्जेक्शन को डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। और अगर उसमें या तो अलाउ होगा क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लीजिए किसी घर में 2-3 भाई हैं और एक भाई के अगेंस्ट में अटैचमेंट हो गया अंडर सेक्शन 85, तो किसका अटैचमेंट हो गया, या तो मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो गया या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो गया। अब यहाँ जो दूसरा भाई वो कह रहा है कि भाई मेरा भी इंटरेस्ट इस प्रॉपर्टी पे है पर हम तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, तो उस तरह के सिनेरियो के रिस्पेक्ट में क्लेम या ऑब्जेक्शन की बात की जाए तो वो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और उस क्लेम ऑब्जेक्शन को या तो अलाउ किया जाएगा या तो डिसअलाउ करेगा। और कहाँ करेंगे, तो कोर्ट विच इशू द अटैचमेंट, उस कोर्ट में करना होगा क्लेम एंड ऑब्जेक्शन जिस कोर्ट ने अटैचमेंट का ऑर्डर दिया है। अलाउ हो गया तब तो ठीक है, कोर्ट उसको अलाउ करेगी। अगर डिसअलाउ हुआ तो भी आप सिविल सूट विद इन 1 ईयर आप फाइल कर सकते हैं। यहाँ पे रेमेडी है कि अगर कोई और पर्सन जिसका इंटरेस्ट अफेक्ट हो गया थ्रू दिस अटैचमेंट तो वो ये रेमेडी ले सकता है। नाउ 87 में हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि वहाँ पे आप देखिएगा कि अगर पर्सन प्रस्तुत हो गया, अगर वो प्रोक्लेमेशन के आधार पे आ गया तो उसको उसके प्रॉपर्टी को रिलीज़ किया दिया जाएगा। और अगर वो नहीं आया तब तो उसकी प्रॉपर्टी एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगी, मतलब सेल कर दिया जाएगा उसके प्रॉपर्टी। या फिर एक जगह आप रीस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी का भी पाएंगे कि विद इन 2 ईयर आ गया और उसने कहा कि हम गुड फेथ में नहीं आ पाए या प्रोक्लेमेशन का हमको सूचना नहीं मिला तो हम नहीं आ पाए, तो उसकी प्रॉपर्टी को रीस्टोर करने की भी बात की जा रही है। तो दैट इज़ ऑल्सो बीइंग सीन, उसको भी हम लोग को देख लेना। 89 को 88 को 89 को देख लेना चाहिए। उसके लिए वो अपील भी कर सकता है कि अगर रिस्टोरेशन उसका 89 में अच्छे से नहीं हुआ तो रिस्टोरेशन के लिए वो अपील भी कर सकता है, तो ये भी देख लेना चाहिए। नाउ द अदर प्रोसेस, तो दिस वे द 4 process to compel appearance of person is being cleared. Okay, summon is one of the process, then warrant of arrest is another process, then proclamation under section 84 is a process, then attachment of property is the final कि अटैच कर दिया जा सकता है आपके प्रॉपर्टी का। तो सेक्शन 90 को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे ये बताया गया है कि कभी कभी कोर्ट जो है समन के साथ साथ वारंट भी इशू करती है या समन के बदले में वारंट दे देती है। तो नॉर्मली समन केस में समन ही होता है, समन में वारंट नहीं होता है, लेकिन 90 इज़ एन एक्सेप्शन अबाउट इट कि कोर्ट जो है कोर्ट में इशू अ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन एंड द प्रोसेस इज गिवन इन सेक्शन 90। अब मान लीजिए जिसको प्रेजेंस के लिए बुलाया जा रहा है वो कोर्ट में ही प्रेजेंट है, तो आप जो है बॉन्ड और बिल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस पे को लेकर के आप उसको छोड़ सकते हैं। तो बिल पावर टू टेक बॉन्ड और बिल बॉन्ड फॉर अपीयरेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड थ्रू विच द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन इज इंश्योर। और अगर 91 को ब्रीच करते हैं तो 92 में आपको अरेस्ट किया जा सकता है। और फाइनल सेक्शन जब आप 93 देखते हैं
तो आप ये देखते हैं कि वट एवर वी रीड इन रिस्पेक्ट ऑफ समन और वारंट ऑफ अरेस्ट, ऑफ एग्जीक्यूशन और अटैचमेंट, दीज आर अप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड ऑफ समन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ समन यहाँ पे हो रहा है उसके लिए अप्लीकेबल। और द वारंट ऑफ अरेस्ट वो कहीं भी अगर संहिता में की जा रही है, प्रोसेस में किया जा रहा है, तो उस पर यही रूल लागू होते हैं। तो आई होप सो कि दिस प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस ऑफ पर्सन का जो डिस्कशन रहा वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहा, और आई होप सो द प्रोविज़न अंडर सेक्शन 763 to 93 of भारतीय नागरिक शिक्षा संहिता is clear. So thank you. We will meet in next video. Thank you.